Gurudev, it is said that two saints, Patanjali and Vyagrapada, had the experience of the cosmic dance of Shiva at the same time in Chidambaram. Well, I am going to say something different. In life, we don't know how to hold on to a sankalpa. You have a sankalpa, and not necessarily the sankalpa immediately manifests. It may take time to manifest. But many times we don't know how to hold on to it. When we see some obstacles, we readily give up those sankalpas. I want to narrate one such incident in the year 1980, before we started Art of Living. Maharshi Mahesh Yogi wanted to bring 10,000 people, youth, and train them and established a a society which is more spiritual society. So, with all the scientific research it has happened, his mind was very scientist. He had a scientific temper. So, he put all the science in the paper ad, and several ads, lakhs of rupees were spent, and ads were given in the paper, inviting people to come to build a good society, better society, and a lot of incentives were given to the people. I was 24 and I was in charge of arranging them, organizing. So we had brought all that material in Faridabad, just outside Delhi. We made arrangements for beds and blankets and mattresses, food and everything. On the day of that, only 10 people turned up. So when Maharshi heard these 10 people, he was a little bit, I could see for one moment he was disappointed, but then next moment he said, "You got 1 in 1,000. Each one of them is equivalent to 1,000. See the spirit. हजारों में एक है ये बोलते, हजारों में एक आए हैं, चलो उसी से शुरू करो. So program started for 10 people, whatever that 1 month or 1.5 month program was there for them. Meditation, yoga, everything. Next time he would plan not for 10,000, 5,000 or 1,000. Next time he will plan for 20,000. He would not see that nobody came, very few came for the 10,000. But the next time, for him it is done. Next time he would go for 20,000. For a logical mind, it appears to be something, it cannot be comprehended. Once Deepak Chopra told me, "I don't understand the mind of the Maharshi." I said, "Don't try at all." Don't try to do that. Once, it was Akshaya Tritiya, same 1980, he wanted to create everywhere centers in India, in all the states. We didn't even have land at the time in all the places. But he said, let's Bhumi Puja kar lenge, sab jagah Bhumi Puja karna.
तो पंडितों को तैयार कर दिया, कहाँ जाके करेंगे? यही सब क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, नहीं करना है बस, संकल्प वो करना है बस। फिर उन सबका, उन दिनों में बेंगलुरु से दिल्ली का फ्लाइट एक ही था, वो भी रोज नहीं था, हफ्ते में 4 बार होता था। बहुत फ्यू फ्लाइट्स हुआ करते थे। तो अभी 2 ही दिन एक ही दिन बचा वैसे वर्चुअली। तो कैसे लोगों को फिर एरोप्लेन में चढ़ा के करना है। उस दिन शनिवार भी था, सब बैंक बंद थी, और कहाँ से लेके आए? आजकल जैसे कोई कार्ड नहीं है जो कार्ड लगाओगे कभी भी पैसा निकालोगे। अब हमारे पास ये टास्क था, चैलेंज था, इतने सारे लोगों को, 4-4 लोग एक एक जगह जाना है, अपना इतने सारे स्टेट्स हैं, सब जगह भेजना है। 101 लोगों को टिकट्स खरीदना है। उनको कभी नहीं पसंद था कि नहीं हुआ, नहीं होगा जी, ये वो नहीं, कुछ नहीं, सोच के बोल दिया तो करना ही है। ऐसे ऐसे चैलेंजेस होते थे। तो हमने वहाँ जितने भी महिलाएं आती, सबके हैंडबैग में तुम्हारे पास कितने पैसे हैं सब निकालो, सबसे पैसे उठाए, ताकि मंडे तक तो बैंक बंद है ना, इतना तो ज़रूरत पड़ रही थी। सो सब, और उन लोगों को हाथ में भी पैसा दे के भेजना है जिनको भी भेज रहे हैं। कई लोगों को सब जगह व्यवस्था करके भेज तो दिया। और सुबह 3 बजे तक एक ग्रुप को मैंने दिल्ली एयरपोर्ट में, उनको कहीं जाना था, कहाँ पर मेरे को स्मरण नहीं, रायपुर या कहीं तो जाना था, उस जगह का टिकट भी मैंने हाथ में पकड़ा के, 3 लोग 4 लोग थे, तो मैंने कहा 4 बजे मैं लौट के आया तो थोड़ा रेस्ट तो कर लूँगा, दिन भर से मैंने सुबह से लगा हुआ था। तो मैंने कहा ये सब हो जाएगा। मैंने उनको टिकट दिया, बोर्डिंग पास दे के आया, तो बोर्डिंग गेट में जाओ। और ये लोग गए, बोर्डिंग पास के पास गए, वहाँ पुलिस खड़ा था। अरे वहाँ पुलिस रखा था, वो तो रोक देगा हमको करके, पुलिस को देख के वापस आ गए। पहली एक्सपीरियंस थी उनकी, पहली बार वो एयरपोर्ट गए। उन दिनों में इतना स्क्रीनिंग इतना जगह जगह होती नहीं थी, मगर एयरपोर्ट में तो थे पुलिस, तो होते ही, वो मेटल डिटेक्टर के पास खड़े हैं। कुत्ता भी लेके बैठे थे, कुत्ता भी था उन दिनों में, ड्रग वग है क्या है, वो सूंघते थे, कुत्ते से सूंघाते थे। और कुत्ता और पुलिस को वहाँ देखे, वहाँ तो पुलिस खड़ा था, वहाँ कैसे जाएंगे हम करके चारों के चारे आ गए वापस। मैं बिस्तर में लेटा, 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद खटखटाया कैमरा कि हम आ गए। ने कहे राम, तो लोग क्या है, संकल्प करके वो सक्सेस होता है, फेल्यूर होता है, उसका कोई परवाह नहीं, काम करना है, काम कर देना है। वेदर समथिंग सक्सीड्स और नॉट सक्सीड्स इज नॉट कंसर्न एट ऑल। गीता में ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल थे वो। उनके लिए तो हो गया काम, वहाँ कुछ हुआ भी नहीं हो, संकल्प आया, उसके लिए जो एफर्ट लगाना लगा दिया, कर दिया, काम हो गया, ऐसे भाव होता था। इसलिए हमें जो संकल्प लेते हैं कुछ करने का, सोच सोच के बैठने से कोई फायदा नहीं, करके ख़त्म कर देना चाहिए, तो मन खाली हो जाता है फिर, है ना, उससे आगे बढ़ जाता है। अगले बार संकल्प जब करते हैं वो पिछले, अरे ऐसा हुआ, ये सोच के नहीं करते, अगले बार जो है उसको ऐसे लगाते। इसलिए कहते कि वो ज्ञानी की चाल समझना
आसान नहीं है, समझने की चेष्टा भी नहीं करना। आपने ऐसा क्यों बोला, इसने ये क्यों बोला, ये सब पूछने का कोई मतलब ही नहीं है। कोई रोता रहे वो तो बोलेंगे रोते रहो, तुम्हारा कर्म है, ऐसे छोड़ देंगे। मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ। कोई रोता है तो मैंने कहा अरे बैठो बोलता हूँ मैं, वो बोले कि भागो यहाँ से हम तो कहेंगे चलो कोई हम बैठो थोड़ी देर, तुम शांत हो जाओगे। ये तरीका अलग अलग है हर एक का, मगर अंदरूनी आत्मा एक है। दुनिया विचित्र है, सब मायामय संसार, ये सब एक दिन ऐसे ही पिघल ही जाएगा, सब पिघल जाएगा। तो हंसते रोते गाते नाचते कूदते किसी तरह से संसार को पूरा जीवन कर लेना चाहिए, उत्सव मना लेना चाहिए। क्या ख्याल है ना? अरे यहाँ एक चीज कभी ठीक होता है तो दूसरा चीज फट जाता है, इसको ठीक करने जाओ तो दूसरा गड़बड़ हो जाता है, और सब ठीक ही है, तुमने कुछ भी नहीं किया फिर भी कोई ना कोई उपद्रव आ ही जाता है। अब उसको लेके दिमाग को खराब करना कहाँ तक ठीक है? वो मूर्खता है, वो है ना। ऐसी बात है। 45 साल हो गया आर्ट ऑफ लिविंग का। मुड़ के देखो तो पता है कितनी तरह से पड़ाव से चल के हुए आ गया अपना। मगर ये जो वर्तमान जनरेशन है, आप तो बड़े लकी हो, ताकि आपको लाइब्रेरी जाना नहीं पड़ेगा, पहले जैसे फ़ोन लगा के हेलो 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 करके चिल्लाना नहीं पड़ेगा, आपको वो अनुभव ही नहीं है। पहले एक फ़ोन कॉल करना हो, बाप रे बाप, वो भी एक बहुत बड़ा काम हो जाता, 3-4 घंटे कोई आप वो फ़ोन कॉल बुक करो, वहाँ बैठे रहो, और जब आएगा 2-3-4 घंटे बाद हेलो हेलो चिल्लाओगे तो कुछ नहीं, और उसके ऊपर से इतना पैसा चला, तुम्हारा इतना पैसा खर्चा हो जाता। इस तरह की सारी हालत थी। तो आज की ज़माने में आप लोगों को सारा ज्ञान सब कुछ मिल जाता। उन दिनों में सिर्फ एक स्पूल वाला टेप हुआ करता था, फिर कैसेट आया, कैसेट से पहले स्पूल वाला। कभी वो टेप बजाओगे, वो रिकॉर्डर बजाओगे, वो अटक जावे, पूरा बाहर आ जावे, फिर उसको बैठ के फिर उसको ठीक करो, बाप रे बाप। जस्ट इमेजिन करो, तुम एक गाना सुनने के लिए लगाया स्पूल, और वो कुछ हो के थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट कुछ हो जाता है तो पूरा निकल के टेप बाहर आ जाता। अब वो स्पूल को निकाल फिर उसको अच्छे से उसको फिर से बांधो, ये सब होता था। आज सब आपको एक सेलफोन में हो जाता। मैं उस वक्त कैलिफोर्निया में थे हम, सेंटा बारबरा बीच में हम लोग चल रहे थे। एक आदमी टॉर्च लेके चल रहा था, दूसरा ट्रांसिस्टर लेके चल रहा था। उन दिनों सेलफोन नहीं थी। वो फ़ोन विदाउट वायरलेस फ़ोन घरों में होता था ना, सिर्फ वही होता था। वो थोड़ी दूर गार्डन तक ले जा सकते हो तुम, कोई 200-300 मीटर तक ही उसका रेंज हुआ करता था, सेल फोन नहीं थी।
सो कोई टॉर्च लेके चल रहा है, कोई इतना बड़ा बूम बॉक्स टेप रिकॉर्डर लेके चल रहा है, कोई कुछ और लेके चल रहा है। मैंने उस वक्त कहा देखो एक छोटा सा प्लास्टिक पीस में ये सब आ जाएगा तुम्हारे पास, उसी में गाना भी, टॉर्च लाइट भी, फ़ोन भी, सब हो गया। मैंने उस वक्त बोला तो लोगों को समझ में नहीं आया, बोले कि पता नहीं गुरुदेव क्या बोल रहे हैं। बोले कि अच्छा, मुझे लगा कि ऐसे एक छोटा सा एक आएगा प्लास्टिक, इसमें सब कुछ होएगा, तुम्हारा जेब में रहेगी। उनको सब समझ में नहीं आया। आज भी वो लोग याद करते हैं, आपने बताया बीच में वॉक करते हुए ऐसे होएगा कर। दुनिया विचित्र है, 12,000 करोड़ प्लैनेट्स हैं, ग्रह है, दुनिया है, उसमें से हमारा सिर्फ एक, अपना सिर्फ उसमें से एक है। तो मन में ये विशालता आ जाए, समझ में आ जाए जीवन। अब थोड़ी छोटी छोटी बातों को लेके हम रोना धोना डोल पीटना ये सब खत्म हो जाएगा। पता नहीं कितने बार तुम यहाँ जन्म लेके आए हो, कितने बार क्या क्या करके गए हो वापस। तो अभी मन को हल्का रखो, प्रसन्न रखो, वही मुक्ति है। मुक्ति के लिए कहीं हिमालय के कंदरों में घुस जाना नहीं है। मुक्ति जहाँ तुमने अपनी ये सारी इच्छा को समर्पण करते हो वही मुक्ति है। खाली हो जाते हो तो वही मुक्ति है। आग्रह छोड़ देते हो तो मुक्ति है। हम आग्रह और पूर्वाग्रह से पीड़ित रहते हैं, यही हमारी समस्या है। ऐसा ही होना चाहिए, एक आग्रह होता है कि या पूर्वाग्रह होता है, अपने मन में समझ लेते हैं सबके बारे में। ये है, ये हमारी समस्या। यही इतना ही आज बात। दस मिनट हम थोड़ा ध्यान कर लेते हैं। पहले ऐसे कोई बैठे के ध्यान भी नहीं कराते थे, पता है। तुम अपना अपना ध्यान करो, मंत्र लो, बैठो, ध्यान करो। कौन तुमको ध्यान करा देते उन दिनों? Nobody. In those days, no one would make you sit and do meditation. You say, you meditate, I'll tell you that's all. But you are also lucky, you have everything in your hand now. Everything ready-made for you. All has come on a silver platter. The bhajan clubbing also, our people started one place, now it has become quite popular around the world. Our singers, teachers and volunteers or singers, they started bhajan clubbing. I said, don't do it under Art of Living banner, because Art of Living banner, many people have got their own ideas, and so I said, just do it so that anybody will come. Clubbing is something which is the lingo of younger generation. So